آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک میں چھپے ایسے رازوں کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن پاک نے تو 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے، لیکن جدید دور کی سائنس نے ان رازوں سے اب جا کر پردہ اٹھایا ہے۔ یہ سائنسی انکشافات کیا ہیں اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا حقائق بیان ہوئے ہیں، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ دوستو، یوں تو قرآن مجید ہر دور میں ایک معجزہ ہے، لیکن سائنس کے جدید دور میں قرآنی اعجاز نئے اسلوب میں نکھر کر سامنے آ گیا ہے۔ جو سائنسی علم و حکمت میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن مجید کی فہم کے افق مزید واضح ہو رہے ہیں۔ سائنس اور فلسفے کا طالب علم جب اس دور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو آیات قرآنی اس انداز میں ہم کلام ہوتی ہے، گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بہت سی باتیں 1500 سال قبل بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس لیے سمجھ میں نہ آ سکیں کہ انسان کی فہم اور اس کی تحقیق و تفتیش کا درجہ اس فہم و بصیرت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سی باتیں جو آج ہمارے لیے محض جدید انکشافات ہیں، اور گزشتہ 1.5 صدی پہلے انسان کو ان کی ہوا بھی نہ لگی تھی، مگر قرآن مجید میں انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ لیکن افسوس کہ غیر مسلم یہ بات نہیں سوچتے کہ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی حقانیت کی نہ ختم ہونے والی شہادت ہے۔ دوستو، دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے 1500 سال پہلے انسان کو مطالعہ کائنات، علم، حکمت اور قرأت و کتابت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آج سے 1400 سال قبل صحرائے عرب میں نہ کوئی کتاب تھی، نہ مصنف، نہ صاحب علم اور نہ پڑھنے لکھنے کا رواج۔ بعض حضرات کے بقول اس وقت سارے عرب میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً 2 درجن تھی جو اپنا نام یا خط لکھ سکتے تھے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس طرح سے اقرأ باسمی، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ فطرت اور کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں متقی، کہیں صاحب ایمان و یقین، کہیں اصحاب فکر و دانش، کہیں عالم اور کہیں اصحاب تدبر و حکمت قرار دیا ہے۔ دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی، فلسفی یا حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف اس قدر زوردار انداز میں توجہ دلائی تھی؟ کیا کوئی شخص کسی ایسی بات کی دعوت دے سکتا ہے جس کی اہمیت کا انکشاف 1200-1300 سال بعد ہونا ہو؟ آج سے 1500 سال پہلے کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں دھواں ہی دھواں تھی اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ دوستو، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل ایسے گیسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی اس مقدار سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ یہ انجام کار متعدد ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو اب بھی دیکھا ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سے آج تک ستارے بن رہے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ 1500 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا اور ایسے متعدد راز بیان فرمائے جن کا انکشاف سائنس نے صدیوں بعد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان و زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ دوستو، مورس بقائی لکھتا ہے کائنات کی ابتدائی مرحلے میں دخان یعنی دھوئیں کی موجودگی، جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جس سے مراد مادے کی زیادہ تر گیسی حالت ہے،
सरीहन इस इब्तदाई सदी के तसव्वुर से मुताबिकत रखता है जो जदीद साइंस ने पेश किया है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि कुरान पाक में बहुत से राज आज से 1400 साल पहले बयान हो चुके थे जिनका इंकशाफ आज के दौर में साइंसदानों ने किया है। मिसाल के तौर पर साइंस ने अब जाकर ये इंकशाफ किया है कि तमाम नबातात में भी हर चीज जोड़ा जोड़ा है, उनमें एक नर है और एक मादा है। मगर ये बात उस जमाने में कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था किसी शख्स को भी मालूम ना थी, लेकिन कुरान मजीद में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई थी। बस हमने जमीन में पौधे और नबातात के अच्छे जोड़े लगाए और दूसरी जगह फरमाया उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। दोस्तों, दौरे जदीद में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जब पानी नबातात पर डाला जाए तो नबातात में एक सब्ज मादा पैदा होता है जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। यही वो मादा है जिसके जरिए से नबातात में दाने और फल पैदा होते हैं। ये बात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी को भी मालूम ना थी, लेकिन रब ने इरशाद फरमाया कि वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया और उसके जरिए नबातात में से हर चीज पैदा की और उसमें सब्ज मादा पैदा किया जिसके जरिए से हम दानों के ढेर पैदा कर लेते हैं। दोस्तों, एक और कुरानी राज मुलाहिजा फरमाएं। दौरे जदीद के साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिंदगी की इब्तदा पानी से हुई। पानी तमाम जानदार खुलियात का जुज़्व आज़म है। पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। जब किसी दूसरे सियारे पर जिंदगी के इम्कान पर बहस की जाती है तो सबसे पहला सवाल हमेशा ये होता है कि क्या वहां हयात कायम रखने के लिए काफी मिकदार में पानी मौजूद है। जर्मनी का एक जियोलॉजिस्ट इब्राहिम वर्नर 1750 से 1871 तक की तमाम तब्दीलियां पानी ही की तरफ मंसूब करता है और कहता है कि पहाड़ों की तामीर पानी की वजह से हुई थी। दोस्तों, आज से 14 सदियां पहले कुरान मजीद नाजिल हुआ। किसी शख्स के इल्म में ये बात नहीं थी कि जिंदगी की इब्तदा पानी ही से हुई, लेकिन कुरान मजीद में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई थी। अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा फरमाया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज से 1500 साल पहले इंसान को ये इल्म ना था कि समंदर में कुछ मौजें सतही होती हैं और कुछ मौजें उसके नीचे होती हैं। तह बतह मौजों का ये तसव्वुर बहुत बाद की दरियाफ्त है। लोगों के इल्म में ये बात भी नहीं थी कि समंदर की गहराइयों में अंधेरे हैं। ये अंधेरे भी इसी तरह तह बतह हैं। अल्लाह ताला ने मछलियों को जुगनुओं की तरह रोशनी अता करके उन अंधेरों में रोशनी का इंतजाम किया है। इसी तरह से लोगों के तसव्वुर में ये बात भी नहीं आ सकती थी कि एक मौज ऊपर से आने वाली रोशनी की किरण के टुकड़े टुकड़े करके उसकी रोशनी जाइल कर देती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सूरज की रोशनी समंदर की गहराई तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बादल सूरज की बाज शुआएं जमीन तक आने से रोक देते हैं। दोस्तों, ये सब इसरार अल्लाह ताला ने एक ही आयत में बयान कर दिए और वो भी आज से 1500 साल पहले, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल, तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देखने पाए। जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे फिर उसके लिए कोई नूर नहीं। दोस्तों, याद रखें, कुरान मजीद वही इलाही है, उसमें हकाइक बयान किए गए हैं। दरअसल आज के दौर में साइंसदान अपने नजरियात में कुरानी हकाइक से करीब तर आ रहे हैं। याद रखें, ये हकाइक कुरान मजीद की सदाकत का सबूत नहीं बल्कि ये साइंसदानों की सदाकत पर दलील है। कुरान मजीद की तमाम इलाहियात हमारी दादो तहसीन के मोहताज नहीं है। ये तो वहीं रहेंगे जहां ये 1500 साल कबल थे।
हुक्मा और साइंसदानों की अक्लों पर पर्दे पड़ें या ये पर्दे कुछ सरक जाएं, हक़ाइक़े कुरानिया और सदाकती ईमानियात में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस कायनात में एक तरफ कई कहकशां सितारों की बेकरार मुसाफतें और तवानाई की बेशुमार लहरें हैं, और दूसरी तरफ महीन बरकी ज़र्रात और बुनियादी अनासर मसलन बेरिलियम, सोडियम, क्रोमियम हैं, जिनसे एशिया की तश्कील हुई। इन्हीं से ज़मीन बनी और इन्हीं से सूरज, चांद और कवाकब तैयार हुए। दोस्तों, रब का कमाल तख्लीक देखना हो तो ऊंट और हाथी को ना देखिए, बल्कि बारीक, रंगीन और उड़ती हुई मक्खियां देखिए जो फूलों और फलों के पास मुंडलाती नजर आती हैं। उनकी ना टांगे नजर आती हैं, ना मुंह और न सर, इसके बावजूद हर लिहाज से मुकम्मल होती हैं। यही कैफियत कायनात के उन महीन ज़ात की है कि जो छोटे होने के बावजूद तख्लीक का शाहकार है। याद रहे कि अल्लाह ताला की तमाम तख्लीकात में ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं कि जिनसे इंसान वाकिफ नहीं है, और इन तख्लियात में से जिन राजों तक आज की साइंस की रसाई हो रही है, वो राज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले ही बयान कर दिए हैं। दोस्तों, अगर यूं कहा जाए कि साइंस के अक्सर उलूम कुरान पाक ही की तालीमात के मरहून मिन्नत हैं, तो गलत ना होगा। साइंस के इंकशाफात से यूं मालूम होता है जैसे कुरानी तालीमात ही से ये उलूम अखज़ किए गए हैं। हम आपको कुरान पाक के जिन राजों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनको जानने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि साइंस तो बगैर कुरानी उलूम के जैसे लंगड़ी लूली होकर रह जाएगी। मशहूर माहिर तिबियात और नोबेल इनाम याफ्ता अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक भी साइंस मजहब इस्लाम के बगैर लंगड़ा है, और साइंस के बगैर कुरान मजीद के अहकामात सबको समझाने मुश्किल हैं। दोस्तों, याद रखें, कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि ये निशानियां यानी आयात की किताब है। मुहक्किकीन के नजदीक कुरान मजीद में 6636 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा साइंस के मुताल्लिक हैं, यानी उनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। आइए आपको चंद कुरानी राजों से और साइंसी इंकशाफात के बारे में बताते हैं, जरा तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं कायनात की तख्लीक बिग बैंग के हवाले से। फल्की तबियात के माहिरीन इब्तदाए कायनात की वजाहत एक ऐसे मजर के जरिए करते हैं जिसे वसी तौर पर कबूल किया जाता है, और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है। बिग बैंग के सबूत में गुज़श्ता कई अशरों के दौरान मुशाहिदात व तजर्बात के जरिए माहिरीन फल्कियात व फल्की तबियात की जमा करदा मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग के मुताबिक इब्तदा में ये सारी कायनात एक बड़ी कमीत की शक्ल में थी, जिसे प्राइमरी नेब्यूला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज, चांद वगैरह की सूरत में आईं। कायनात की इब्तदा इस कदर मुनफरिद और अछूती थी कि इत्तफाक से उसके वजूद में आने का एहतमाल सिफर यानी कुछ भी नहीं था। जबकि कुरान पाक की आयात में इब्तदाए कायनात के मुताल्लिक यूं बताया गया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। दोस्तों, इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज मुमासलत से इनकार मुमकिन ही नहीं। अलबत्ता यह हकीकत है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में जाहिर हुई, वो अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत और राज लिए हुए है जो आज के साइंसदानों के लिए भी नाकाबिले यकीन है। लेकिन इस मुकद्दस किताब की हकानियत को झुटलाया नहीं जा सकता, जो इस मुकद्दस किताब यानी कुरान पाक की हकानियत से रोशनास हो जाता है, फिर वो इस पर ईमान लाए बगैर रह नहीं सकते। दोस्तों, बिग बैंग के अलावा 1925 में अमरीकी माहिर तिबियात एड्रोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया
कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये है कि कायनात फैल रही है और ये बात आज मुसल्लमा साइंसी हकाइक में शामिल है। जबकि कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से सदियों पहले ही यूं इरशाद हो चुका है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, इस आयत में अरबी लफ्ज मोसिऊन का सही तर्जमा हम वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं बनता है, और ये एक ऐसी कायनात की तरफ इशारा करता है जिसकी वुसअतें मुसलसल फैलती जा रही हों। असर हाजिर का मशहूर तरीन फल्की तिबियात दान स्टीफन हॉकिंग अपनी तसनीफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि ये कायनात फैल रही है। लेकिन दोस्तों, कुरान पाक ने कायनात के फैलने को इस वक्त बयान फरमा दिया था जब इंसान ने दूरबीन तक इजाद नहीं की थी। इसके बावजूद मुतशक्किक ज़हन रखने वाले बाज लोग ये कह सकते हैं कि कुरान पाक में फल्कियाती हक़ाइक़ का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज बात नहीं। दोस्तों, फल्कियात के अलावा दीगर साइंसी उलूम के अक्सर इंकशाफात भी ऐसे हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक 1400 साल पहले ही कर चुका है। बात की जाए अलूम नबातात में पौधों में नर और मादा के नजरिए की, तो पुराने जमाने के इंसान को ये मालूम नहीं था कि पौधों में भी जानवरों की तरह नर और मादा होते हैं। अलबत्ता जदीद नबातियात ये बताती है कि हर पौधे की नर और मादा सिन्फ होती है, हत्ता कि वो पौधे जो एक सिन्फी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें भी नर और मादा के इम्तियाजी अज्जा यकजा होते हैं। जबकि कुरान मजीद की आयात में ये बात सदियों पहले यूं बयान हो चुकी है, और हमने आसमान से पानी बरसाया और उसमें हमने मुख्तलिफ इक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं। इसी तरह फलों में नर और मादा का फर्क कुरान में यूं बयान किया है, उसने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। दोस्तों, बात की जाए आला दर्जे के पौधों में नस्ल खेजी की, तो याद रहे कि आखिरी पैदावार उनके फल होते हैं। फल से पहले फूल का मरहला होता है जिसमें नर और मादा आज़ा यानी स्टीमेंस और ओव्यूल्स होते हैं। जब कोई जरदाना, जिसे पोलन कहते हैं, किसी फूल तक पहुंचता है तभी वो फूल बारावर होकर फल में बदलने के काबिल होता है, यहाँ तक कि फल पक जाता है। इस पौधे की अगली नस्ल को जन्म देने वाले बीज से लैस होकर तैयार हो जाता है। लिहाजा तमाम फल इस अमर का पता देते हैं कि पौधों में भी नर और मादा आज़ा होते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुरान पाक भी पहले बयान फरमा चुका है। पौधों की बाज अनवा में गैर बारावर फूलों से भी फल बन सकते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। इनमें केले के अलावा अनानास, इंजीर, माल्टा और अंगूर वगैरह की बाज इक़साम शामिल हैं। इन पौधों में भी बहुत वाज़ेह सिन्फ़ी ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं, क्योंकि इरशाद बारी ताला है और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं। इस आयत मुबारका में हर चीज़ के जोड़ों की शक्ल में होने पर जोर दिया गया है। इंसानों, जानवरों, फलों और पौधों के अलावा बहुत मुमकिन है कि ये आयत मुबारका बिजली की तरफ भी इशारा कर रही हो, जिसमें एटम मनफी बार वाले इलेक्ट्रॉनों और मस्बत बार वाले मरकज़े पर मुश्तमिल होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से जोड़े हो सकते हैं। जैसा कि इरशाद है, पाक है वो ज़ात जिसने जुमला इक़साम के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन की नबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से, या उन इशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है, जिनमें वो चीजें भी शामिल हैं जिन्हें आज का इंसान नहीं जानता, और हो सकता है कि आने वाले कल में उन्हें दरियाफ्त कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ूऑलॉजी यानी अलूम हैवानियात के बारे में। याद रहे कि जानवरों और परिंदों में मुआशरे का वजूद कुरान पाक में सदियों पहले यूं बयान हुआ है
जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी तरह के मुआशरों में रहते हैं। साइंसी तहकीक से सदियों बाद साबित हुआ है कि जानवर और परिंदे भी मुआशरों की शक्ल में रहते हैं। मतलब ये कि इनमें भी एक इज्तमाई नज़्म ज़ब्त होता है, वो मिलजुल कर रहते हैं और काम भी करते हैं। और उलूम हैवानियात में जानवरों की ग्रोहबंदी बड़ी तफसील से बयान हुई है। अलबत्ता जानवरों के मुआशरे यानी कम्युनिटी की बात तो कुरान पाक में पहले से बयान हो चुकी है। इसके अलावा परिंदों की परवाज के हवाले से इरशाद है, क्या उन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फिजाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं? अल्लाह ताला के सिवा किसने उनको थाम रखा है? इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। एक और आयत मुबारका में परिंदों पर कुछ इस अंदाज से बात की गई है, ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं देखते। रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो, वही हर चीज का निगहबान है। दोस्तों, इन आयात रब्बानी में इस पर जोर दिया गया है कि परिंदों के तर्ज अमल का मुकम्मल इन्हसार इन्हीं कवानीन पर है जिन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया है, जिन्हें हम कवानीन फितरत के नाम से जानते हैं। अलबत्ता अब जदीद साइंसी मालूमात से साबित हो चुका है कि बाज परिंदों में परवाज की बेमिसल और बेऐब सलाहियत का ताल्लुक इस वसीतर और मजमूई मनसूबा बंदी से है जो उनकी हरकत व सकनात से मुताल्लिक है। मसलन हजारों मील दूर तक नकल मकानी करने वाले परिंदों की जीनियाती रमूज में उनके सफर तमाम की तफसीलात और जिज़ियात मौजूद होती हैं, जो उन परिंदों को इस काबिल बनाती हैं कि वो निहायत कम उम्री में भी लंबे सफर के किसी तजर्बे के बगैर, किसी रहनुमा के बगैर हजारों मील का फासला तय कर लें और पेचीदा रास्तों से परवाज करते चले जाएं। बात सिर्फ सफर की एकतरफा तकमील पर ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो एक मखसूस तारीख पर अपने आर्जी मस्कन से परवाज करते हैं और हजारों मील वापसी का सफर करके एक बार फिर अपने घोंसलों तक बिल्कुल ठीक ठाक जा पहुंचते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर हैम्बर्गर ने अपनी किताब पावर एंड फ्रेजिलिटी में मटन बर्ड नामी एक परिंदे की मिसाल दी है जो बहरुल काहिल के इलाकों में पाया जाता है। नकल मकानी करने वाला ये परिंदा 24,000 किलोमीटर का फासला 8 की शक्ल में चक्कर लगाकर तय करता है। ये अपना सफर 6 माह में पूरा करता है और मकाम इब्तदा तक ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की ताखीर से वापस पहुंच जाता है। ऐसे किसी सफर के लिए पेचीदा मालूमात का होना जरूरी है जो इस परिंदे के आसाबी खुलियात में महफूज होनी चाहिए, यानी एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम की शक्ल में परिंदे के जिस्म में मौजूद और हमा वक्त दस्तयाब होती है। अगर परिंदे में कोई प्रोग्राम है तो क्या उससे ये जाहिर नहीं होता कि उसे तश्कील देने वाला कोई प्रोग्रामर भी यकीनन है, और ये प्रोग्रामर यकीनन खालिक कायनात है जिसने तमाम मखलूकात को पैदा फरमाया और इनमें ऐसी निशानियां रखी हैं। अल्लाह ताला की ऐसी निशानियों के बारे में जानकर इंसान बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कह उठता है। दोस्तों, अगले जिस कुरानी राज और साइंसी इंकिशाफ की हम बात करने जा रहे हैं वो है शहद की मक्खी और उसकी महारत के हवाले से। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची छतरियों पर अपने छत्ते बनाए और हर तरह के फूलों का रस चूसे और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। दोस्तों, शहद की मक्खी के बारे में साइंसी तहकीक क्या कहती है, आइए ये भी मुलाहिजा कीजिए। आपको बताते चलें कि वॉन फर्श ने शहद की मक्खियों के तर्ज अमल और उनमें राबता व अबलाग की तहकीक पर 1973 में नोबेल इनाम हासिल किया था। इस तहकीक के मुताबिक शहद की किसी मक्खी को जब कोई नया बाग या फूल दिखाई देता है
तो वो अपने छत्ते में वापस जाती है और अपनी साथी शहद की मक्खियों को उस मकाम का ठीक ठीक सिमत और वहां पहुंचने वाले रास्ते के मुफस्सल नक्शे से आगाह करती है। शहद की मक्खी पैगाम रसानी का ये काम खास तरह की जिस्मानी हरकत से लेती है, जिन्हें शहद की मक्खी का रक्स और अंग्रेजी में बी डांस कहा जाता है। जाहिर है कि ये आम मानव वाला रक्स नहीं होता, बल्कि इसका मकसद शहद की कारकुन मक्खियों को ये समझाना होता है कि फूल किस सिमत हैं और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें किस अंदाज से परवाज करना होगी। शहद की मक्खी के बारे में ये सारी मालूमात जदीद फोटोग्राफी और दीगर पेचीदा मुशाहिदाती ज़राए से हासिल की गई हैं, लेकिन गौर फरमाएं कि बयान की गई आयात मुबारका में कुरान अजीम शान ने कितनी सराहत के साथ ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को खास तरह की महारत अता फरमाई है, जिससे लैस होकर वो अपने रब के बताए हुए रास्ते तलाश कर लेती है। दोस्तों, एक और तवज्जो तलब नुक्ता ये है कि इन आयात मुबारका में शहद की मक्खी के लिए जो सिन्फ इस्तेमाल की गई है वो मादा की है। इससे ये जाहिर होता है कि ग़िज़ा की तलाश में निकलने वाली शहद की मक्खी मादा होती है। बल्फाज़े दीगर सिपाही या कारकुन शहद की मक्खी भी मादा ही होती है। दोस्तों, शहद की मक्खी के अलावा कुरान पाक में एक और मिसाल चींटियों की बयान हुई है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सुलेमान के लिए जिन और इंसान और परिंदों के लिए लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे ज़ब्त में रखे जाते थे, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। दोस्तों, हो सकता है कि माजी में बाज लोगों ने कुरान पाक में चींटियों का बयान किया गया मुकालमा देखकर इस पर नुक्ताचीनी की हो और कहा हो कि चींटियां तो सिर्फ कहानियों की किताबों ही में बातें करती हैं। अलबत्ता हालिया बरसों के दौरान हमें चींटियों की तर्ज़े हयात, बाहमी रवाबित और पेचीदा मालूमात के तबादले के हवाले से बहुत कुछ इल्म हो चुका है। ये मालूमात दौरे जदीद से पहले के इंसानों को हासिल न थी। तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि वो जानवर या हशरात, कीड़े मकोड़े जिनका तर्ज़ हयात इंसानी मुआशरत से गैर मामूली ममासलत रखता है, वो चींटियां ही हैं। उनकी तस्दीक चींटियों के बारे में होने वाली हालिया दरियाफ्तों से होती है। तहकीकात के मुताबिक चींटियां भी अपने मुर्दों को इंसानों की तरह दफनाती हैं। उनमें कारकुनों की तकसीम का पेचीदा निज़ाम मौजूद है, जिसमें निगरान कारकुन और मजदूर वगैरह शामिल हैं। कभी कभार वो आपस में मिलती हैं और गुफ्तगू भी करती हैं। उनमें बाहमी तबादले का तरक्की याफ्ता निज़ाम मौजूद है। उनकी कॉलोनियों में बाकायदा बाजार होते हैं जहां वो इशिया का तबादला करती हैं। सर्दियों में लंबे अरसे तक ज़ेरे ज़मीन रहने के लिए वो अनाज के दानों का ज़ख़ीरा भी करती हैं और अगर कोई दाना फूटने लगे यानी उससे पौधा बनने लगे तो फौरन उसकी जड़ें काट देती हैं, जैसे उन्हें ये पता हो कि अगर वो इस दाने को यूं ही छोड़ देंगी तो वो बढ़ना और पकना शुरू कर देगा। अगर उनका महफूज किया हुआ अनाज किसी भी वजह से मसलन बारिश से गीला हो जाए तो वो उसे अपने बिल से बाहर ले जाती हैं और धूप में सुखाती हैं। जब अनाज सूख जाता है तभी वो उसे बिल में वापस लेकर जाती हैं। यानी यूं लगता है जैसे उन्हें ये इल्म हो कि नमी की वजह से अनाज के दाने से जड़ें निकल पड़ेंगी जो दाने को इस काबिल नहीं छोड़ेंगी कि उसे खाया जा सके। दोस्तों, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं जिनकी जानिब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान के पास वक्त ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला की इन निशानियों में तदब्बुर करे। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं तिब के हवाले से और आपको कुरान के राजों और तिब्बी तहकीकात के बारे में बताते हैं। बात करते हैं शहद की, जिसको नौ इंसानी के लिए शिफा करार दिया गया है। याद रहे, शहद की मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है और उसे अपने ही जिस्म के अंदर शहद में तब्दीली करती है।
इस शहद को वो अपने छत्ते में बने खानों में जमा करती है। आज से सिर्फ चंद सदियां पहले ही इंसान को ये मालूम हुआ है कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से निकलता है, मगर ये हकीकत कुरान पाक ने 1400 साल पहले इन आयात मुबारका में बयान कर दी थी। उस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। दोस्तों, इस शिफा के हवाले से आपको चंद तिब्बी तहकीकात के बारे में बताते हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हाल ही में दरियाफ्त किया गया है कि शहद में जख्म को ठीक करने के शिफा बख्श खुसूसियात पाई जाती हैं और ये नरम मरहम जैसी जरासीम कुश दवा का काम भी करता है। तारीखी रिवायात बताती हैं कि दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने भी अपने जख्मी फौजियों के जख्म ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, शहद की ये खासियत है कि ये नमी को बरकरार रखता है और बाफ्तों पर जख्म के बहुत ही कम निशान बाकी रहने देता है। शहद की कसाफत के बायस कोई फफूंदी या जरासीम जख्म में परवान नहीं चढ़ सकता। इसी तरह सिस्टर कैरोल नामी एक मसीही राहिबा ने बरतानवी शिफा खानों में सीने और अल्जाइमर की बीमारियों में मुब्तला 22 नाकाबिले इलाज मरीजों का इलाज परपोलस नामी मादे से किया। शहद की मक्खियां ये मादा पैदा करती हैं और इसे अपने छत्ते के खानों को जरासीमों को रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर कोई शख्स किसी पौधे से होने वाली एलर्जी में मुब्तला हो जाए तो इसी पौधे से हासिल शुदा शहद उस शख्स को दिया जा सकता है ताकि वो एलर्जी के खिलाफ मज़ाहमत पैदा कर ले। माहिरीन के नज़दीक शहद विटामिन के और फ्रक्टोज एक तरह की शक्कर से भी भरपूर होता है। दोस्तों, ये तो चंद खुसूसियात हैं जो माहिरीन ने बयान की हैं, वरना खुद ही सोच लें कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शिफा बोला है तो उससे हर बीमारी से शिफा हासिल की जा सकती है। कुरान में शहद, उसकी तश्कील और खुसूसियात के बारे में जो इल्म दिया गया है उसे इंसान ने नज़ूल कुरान के सदियों बाद अपने तजर्बे और मुशाहिदे से दरियाफ्त किया है। अफसोस का मकाम है कि आज हम लोग मेडिकल और साइंस की बातों पर तो यकीन करते हैं, लेकिन कुरान पाक की तालीमात पर हमारे यकीन कमजोर हो रहे हैं। डॉक्टरी दवाइयां तो हम खाते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी बीमारियों का इलाज कभी शहद से करने की कोशिश की है? इसका जवाब हर कोई बखूबी जानता है। दोस्तों, अगला जो राज कुरान पाक में बयान हुआ है वो निशानात अंगश्त यानी फिंगरप्रिंट्स के हवाले से है। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। दोस्तों, कुफार और मुल्हिदीन ये एतराज करते हैं कि जब कोई शख्स मर जाने के बाद मट्टी में मिल जाता है और उसकी हड्डियां तक बोसीदा हो जाती हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि क़यामत के रोज उसके जिस्म का एक एक जर्रा दोबारा यकजा होकर पहले वाली जिंदा हालत में वापस आ जाए? और अगर ऐसा हो भी गया तो रोज़े महशर उस शख्स की ठीक ठीक शनाख्त क्यों कर होगी? अल्लाह ताला रब्बे जुल जलाल ने बयान की गई आयात मुबारका में इसी एतराज का बहुत वाज़े जवाब देते हुए फरमाया कि वो यानी अल्लाह ताला सिर्फ इसी पर कुदरत नहीं रखता कि वो रेजा रेजा हड्डियों को वापस यकजा कर दे, बल्कि इस पर भी कादिर है कि हमारी उंगलियों के पोरों यानी फिंगर टिप्स तक दोबारा से पहली वाली हालत में ठीक ठीक तौर पर ले आए। दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि जब कुरान पाक इंसानों की इनफरादी शनाख्त की बात कर रहा है तो उंगलियों की पोरों का खसूसियत से तज़किरा क्यों कर रहा है? सर फ्रांसिस गोल्ड की तहकीक के मुताबिक 1880 में निशानात अंगश्त को यानी फिंगर प्रिंट्स को शनाख्त के साइंसी तरीके का दर्जा हासिल हुआ। आज हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में कोई से भी दो अफराद की उंगलियों के निशानात का नमूना बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, हत्ता कि हम शक्ल जुड़वा अफराद का भी नहीं।
यही वजह है कि आज दुनिया भर में मुजरमों की शनाख्त के लिए उनके निशानात अंगश्त ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उनके फिंगरप्रिंट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। या कोई बता सकता है कि आज से 1400 साल पहले किसी को फिंगरप्रिंट्स की इनफरादियत के बारे में मालूम था? यकीनन ये इल्म रखने वाली ज़ात अल्लाह ताला के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी, जिसने अपने प्यारे हबीब खत्मुर रसूल पर वही के जरिए ये तमाम निशानियां नाजिल फरमाई और फिर इंसान को इन निशानियों में गौर व तफक्कुर और तदब्बुर करने की तलकीन भी की। दोस्तों, बात करते हैं पेन रिसेप्टर्स की, जिनको उर्दू में जिल्द में दर्द के आखज़े कहा जाता है। दोस्तों, ये पहले समझा जाता था कि महसूसात और दर्द वगैरह का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर होता है। अलबत्ता हालिया दरियाफ्तों से ये मालूम हुआ है कि जिल्द में दर्द को महसूस करने वाले आखज़े होते हैं, यानी रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ये खुलियात ना हो तो इंसान दर्द को महसूस करने के काबिल नहीं होता। जब कोई डॉक्टर किसी मरीज में जलने के बायस पड़ने वाले जख्मों का मुआयना करता है तो वो जलने का दर्जा यानी शिद्दत मालूम करने के लिए जले हुए मकाम पर सुई चुभोकर देखता है। अगर चुभने से मुतासरा शख्स को दर्द महसूस होता है तो डॉक्टर को उस पर खुशी होती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जलने का जख्म सिर्फ बाहर की हद तक है और दर्द महसूस करने वाले खुलियात महफूज हैं। इसके बरखिलाफ अगर मुतासरा शख्स को सुई चुभने पर दर्द महसूस ना हो तो ये तशवीशनाक अमर होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जलने से बनने वाले जख्म की गहराई ज्यादा है और दर्द के आखज़े यानी खुलियात भी मुर्दा हो चुके हैं। दोस्तों, कुरान पाक ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में दर्द के इन आखज़ों की मौजूदगी के बारे में यूं बयान फरमाया है, जिन लोगों ने हमारी आयात मानने से इनकार कर दिया है उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे और जब उसके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखे। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत को खूब जानता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने तो दर्द के महसूस करने वाले आखज़ों का जिक्र फरमा दिया, लेकिन आपको बताते चलें कि थाईलैंड में चांग माई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के सरबराह प्रोफेसर तेगातात तेजाशान ने दर्द के आखज़ों पर तहकीक में बहुत वक्त सर्फ किया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि कुरान पाक ने 1400 साल पहले इसी साइंसी हकीकत का इंकशाफ कर दिया होगा। ताहम बाद-ए-ज़ां जब उन्होंने बयान की गई कुरानी आयत के तर्जमे की बाकायदा तस्दीक कर ली तो वो कुरान पाक की साइंसी दुरुस्ती से इस कदर मुतासिर हुए कि सऊदी अरब के शहर रियाज में मुनक्किदा 8वीं सऊदी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मौके पर, जिसका मौजू कुरान पाक और सुन्नत में साइंसी निशानियां था, उन्होंने भरे मजमे में फख्र के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कहकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की और कुरानी राजों की। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फिर इंसान यही देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया। एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। दोस्तों, याद रखें, जुनीनी मराहिल यानी एम्ब्रियाटिक स्टेजेस में मर्दाना और जनाना तौलीदी अज़ा यानी फोते और बैजा दान गुर्दों के पास से रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसलियों के दरमियान से नमू पजीर होना शुरू करते हैं। बादजा वो कुछ नीचे उतर आते हैं। जना तौलीदी और गदूद यानी बैजा दानियां पेडू में रुक जाती हैं, जबकि मर्दाना अज़ाए तौलीद के रास्ते खसिया दानी तक जा पहुंचते हैं। हत्ता के बुलोगत में भी जबकि तौलीदी गदूद के नीचे जाने का अमल रुक चुका होता है, इन गदूद में धड़ वाली बड़ी रग के जरिए खून और असाब की रसानी का सिलसिला जारी रहता है।
ध्यान रहे कि धड़ वाली बड़ी रग इस इलाके में होती है जो रीढ़ की हड्डी और पसलियों के दरमियान होता है। लम्फी निकास और खून का वरीदी बहाव भी इसी सिमत होता है। साइंस ने आज इसी बात को अपनी अंदाज में पेश किया है जिसको कुरान पाक ने सदियों पहले ही बयान किया था। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में कम से कम 11 मर्तबा कहा गया कि इंसान को नुत्फे से तख्लीक किया गया है, जिसका मतलब माए की निहायत मामूली मिकदार या प्याला खाली हो जाने के बाद उसमें लगा रह जाने वाला माए है। ये बात कुरान आलीशान की कई आयात मुबारका में वारिद हुई है। साइंस ने हाल ही में ये दरियाफ्त किया है कि बैज़े को बारावर करने के लिए औसतन 30 लाख खुलियात नुत्फे में से सिर्फ एक की जरूरत होती है। मतलब ये हुआ कि खारिज होने वाले नुत्फे की मिकदार 30 लाखवां हिस्सा या 0.00003% मिकदार ही बारावरी यानी हमल ठहराने के लिए काफी होती है। ये हैं अल्लाह की निशानियां दोस्तों कि एक मामूली कतरे से इंसान की तख्लीक को मुकम्मल फरमाता है। आपको बताते चले कि नुत्फे के अलावा कुरान पाक में सिलसिलातुल माए का जिक्र यूं हुआ है, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह है। अरबी लफ्ज सिला से मुराद किसी माए का बेहतरीन हिस्सा, खुलासा या जौहर है। अब हम जान चुके हैं कि जनाना बैज़े की बारावरी के लिए मर्द से खारिज होने वाले लाखों करोड़ों खुलियात नुत्फे में से सिर्फ एक की खुलिया नुत्फे को कुरान पाक ने सिल्ला कहा है। अब हमें यह भी पता चल चुका है कि औरत में पैदा शुदा हजारों बैज़ों में से सिर्फ एक ही बारावर होता है। हजारों में से इसी एक बैज़े के लिए जो बारावर होता है, कुरान पाक ने सिल्ला का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इस लफ्ज का एक और मफहूम किसी माए से किसी चीज का बड़ी एहतियात से अखराज भी है। इस माए से मुराद जनाना और मर्दाना दोनों तरह के तौलीदी मायात भी हैं जिनमें सिनफी तुख्म मौजूद होते हैं। मतलब ये कि बारावरी के मरहले के दौरान नुत्फा खुलिये और बैज़ा दोनों ही अपने अपने माहौल से बाएहतियात जुदा होते हैं। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हमने इंसान को एक मखलूत आपस में मिले हुए नुत्फे से पैदा किया। अरबी लफ्ज नुत्फतिन अमशाज का मतलब है मिले हुए मायात। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मिले हुए मायात से मुराद औरत या मर्द के तौलीदी आमिल या मायात हैं। मर्दाना और जनाना सिनफी तुख्म के बाहम मिल जाने के बाद बनने वाला जुफ्ता यानी ज़ाइगोट भी इब्तिदा में नुत्फा ही रहता है। बाहम मिले हुए हम आमेज मायात से एक और मुराद वो माए भी हो सकता है जिसमें खुलियात नुत्फा तैर रहे होते हैं। ये माई कई तरह की जिस्मानी रुतूबतों से मिलकर बनते हैं जो किसी जिस्मानी वदूद से खारिज होती हैं। लिहाजा नुत्फतिन मशाज यानी आपस में मिले हुए मायात के जरिए मर्दाना और जनाना सिनफी मवाद, तौलीदी माए या खलियात और उसके इर्द गिर्द मायात के कुछ हिस्से की जानिब इशारा किया जा रहा है। दोस्तों याद रहे कि इंसान की तख्लीक के मराहिल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ी सराहत के साथ बयान फरमाया है और आज की साइंस ने इन्हीं मराहिल को अपने अंदाज से बयान किया है। साइंस ने इन मराहिल के अपने नाम रख दिए हैं और इन मराहिल पर तहकीकात करके इन्हीं मराहिल की कुछ मजीद तफसीलात भी बयान करने की कोशिश की है। आइए आपको बताते हैं कि इन जेनीनी मराहिल यानी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के बारे में कुरान और साइंस का क्या कहना है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और यकीनन हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने उसे नुत्फा बनाकर एक महफूज जगह यानी रहमे मादर में रखा, फिर हमने नुत्फे को खून का एक लोथड़ा बनाया, फिर उसको गोश्त की बोटी बनाया, फिर हमने लोथड़े को हड्डियां बना दिया, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहनाया, फिर हमने उसे एक नई सूरत दे दी। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। दोस्तों इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान माए की हकीर मिकदार से तख्लीक किया गया जिसे अमन की जगह पर रखा जाता है।
मजबूती से जमाया हुआ, खूब मुस्तहकम या ठहराया गया, जिसके लिए अरबी लफ्ज करार मकीन इस्तेमाल हुआ है। तहकीकात बताती हैं कि रहम मादर पिछली जानिब से रीढ़ के मोहरों के सतहों से अच्छी तरह महफूज किया गया होता है, जिसे कमर के पट्टे मजबूती से सहारा देते हैं। जिनीन एमनियोटिक फ्लूइड से भरे एमनियोटिक सेक से मजीद महफूज बनाया गया होता है। चुनाचे जेनन एक बेहतरीन महफूज देने की जगह होती है। सियाल की इस कलील मिकदार को अलका में तब्दील किया जाता है, यानी ऐसी चीज जो चिपक जाती है, उससे जोंक जैसी चीज भी मुराद है। ये दोनों तारीफें साइंसी तौर पर काबिल कबूल हैं, क्योंकि बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में रहम मादर की दीवार से चिपक जाता है और शक्ल के लिहाज से जोंक से भी मुशाबे होता है। ये जोंक ही की तरह रवैया रखता है, यानी ये खून चूसने वाले कीड़े की तरह, और अपनी खूनी रसद नाफ के जरिए माँ से हासिल करता है। दोस्तों, ये मराहिल जो कुरान में बयान हुए, साइंस भी इन्हीं मराहिल की कायल है, हालतों या साखतों पर हैं। यही वो मराहिल हैं जिनसे कोई जेनेन मरहला वार अंदाज में गुजरता है। इसके अलावा ये हालतें भी काबिल अज़ विलादत नश्व नुमा के मुख्तलिफ मराहिल की अलमबरदार हैं और ऐसी साइंसी तौज़ीहात फराहम करती हैं जो निहायत उम्दा और काबिल फ़हम होने के साथ साथ अमली अहमियत भी रखती हैं। दोस्तों, ये थे चंद ऐसे कुरानी राज जो साइंस के इंकिशाफात जो आपके लिए बयान किए गए। आपने भी महसूस किया होगा कि साइंस की इंकिशाफात तमाम के तमाम कुरान पाक की तालीमात ही से अखज़ शुदा हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं।